Good morning, students. Yesterday we have done part A, which includes fill-ups, mental maths, and true false, and section third of part B. Right? I hope you have understood all sums. Today we are going to start section number 4th, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ईच सम इज ऑफ 3 मार्क्स. इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं और हर सम 3 मार्क्स का है. मीन्स 7 3s are 21. So fourth section is of 21 marks, right? So first sum is make a closed polygon for 9-sided figure. तो हमने closed polygon draw करना है जिसकी 9 sides हो, right? So I have drawn अ क्लोज पॉलीगन फॉर 9-साइडेड फिगर. उसकी साइड्स 9 होनी चाहिए. आप जैसे मर्जी ड्रॉ करो लेकिन साइड्स 9 ही हों. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. राइट? नोट डाउन. राइट डाउन नेम्स ऑल्सो. A B C D E F G H and I. Right? So it's a 9-sided polygon. Fine. So second part is measure the following angles. Part A is of 90 degree. So it is right angle. Right angle means 90 degree. And second part is of 180 degree means straight angle. Straight angle. Straight angle means angle is of 180 degree, right? So third part is add rupees 34.75 to rupees 56.32 and subtract from rupees 130. मीन्स इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है. राइट? तो आप स्टेप बाय बी कर सकते हो. रुपीज 34.75 एंड रुपीज 56.32. राइट? इन दोनों को ऐड करेंगे. 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, 1 will carry over 1's place, 6 plus 4 10 plus 1 11, 1 will carry over 10's place, 5 plus 3 8 plus 1 9. So it's 91.07, 91 rupees 7 पैसे. और स्टेप नंबर 2 क्या है कि 130 में से हमने इस चीज़ को इस नंबर को माइनस करना है. रुपीज़ 130 minus 91.07. So these numbers are unlike decimal. तो इसको like decimal कैसे बनाएंगे? By placing 0. तो यहाँ पे हम decimal place करके 0 लगा सकते हैं. Right? Now we will subtract. 10 minus 7 3, 9 minus 0 9, 9 minus 1 8, 2 minus 9 is not possible. So 12 minus 9 3. So it is equal to 38 rupees 93 paise. Right? Next sum number 4th part 4 multiply. तो rupees 96.16 multiply by 15. 5 को इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई. 5 6 are 30. 3 will carry over 10th place. 5 1s are 5 plus 3 8. 5 6 are 30. 3 will carry over 10th place. 5 9s are 45 plus 3 48. 1 6 are 6. 1 1s are 1. 1 6 are 6. 1 9s are 9. Right? Now we will add 0. 8 plus 6 14. 1 plus 1 2. 8 plus 6 14. 9 plus 4 13 plus 1 14. So डेसिमल कहाँ आएगा? डिजिट काउंट करेंगे 1 2. 2 डिजिट से पहले है तो लास्ट में 2 डिजिट काउंट करेंगे और उनसे पहले डेसिमल प्लेस करेंगे. सो इट इज इक्वल टू रुपीज 1442.40. राइट? दिस इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट इज डिवीजन. 32.32 डिवाइडेड बाई 16. तो 16 से डिवाइड करेंगे 32.32 को. राइट? 16 इज अ 2 डिजिट नंबर. सो
we will multiply 16 by 2. 16 2s are 32, right? Subtract 0, and after 32 there is a decimal, so we will mark decimal sign here. Decimal mark करेंगे. Then bring down 3. 16 के टेबल में 3 आता है? No. So place 0 and subtract 3 and bring down 2. So 16 2s are 32. So answer is 2 rupees 2.02, right? This is our answer. Fine. So next sum number 6, subtract this from this. फ्रॉम वाली टर्म हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म को. सो रुपीज 251.15, राइट. तो माइनस करेंगे. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 1 0, 10 minus 5 5, 4 minus 2 2. So rupees 250.85. So next last part of section 4, seventh part, solve 102.37 plus 81.37 minus 167.17, right? So we will solve this sum by mentioning step 1 and step 2. step 1 में क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस की हैं, सो वी विल ऐड दीज 2 टर्म्स. 81.37, राइट. 7 plus 7 14, 1 will carry over 10th place. 3 plus 3 6 plus 1 7, 2 plus 1 3, 0 plus 8 8, 1 as it is, right? So step 2 क्या है कि इस दोनों के टोटल में से इसको माइनस करेंगे, राइट. 183.74 माइनस 167.17, right? So subtract these values. 14 minus 7 7, 6 minus 1 5, 13 minus 7 6, 7 minus 6 1, 1 minus 1 0. So it is equal to 16.57. Now I'm going to solve section 5th, long answer type questions, and each sum is of 5 marks. So first sum is draw an angle with the help of protractor. एंगल ड्रॉ करना है हमने 120 डिग्री का, और उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नोट डाउन करेंगे, राइट. जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है वैसे वैसे ही पॉइंट्स रिटर्न होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क अ पॉइंट ओ. हमने कोई भी कहीं भी ओ पॉइंट मार्क कर लेना है. मार्क अ पॉइंट ओ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट mark a point O with the help of pencil. Second point, draw a ray OA. तो हमने इसी पॉइंट्स को लेके एक रे ड्रॉ करेंगे. रे क्या होती है, जिसका वन एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट. नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ड्रॉ अ रे ओ ए एक रे ड्रॉ की हमने, राइट. थर्ड पॉइंट, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द पॉइंट ओ. तो सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर का सेंटर ये पॉइंट, इसको ओ पॉइंट पे रखना है. जस्ट अभी हमने प्लेस ही किया है. तो थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द पॉइंट ओ. तो ओ पे हमने इसको प्लेस करना है, राइट. ऐसे प्लेस कर लिया कि वो पॉइंट इस पे ओवरलैप हो.
फोर्थ पॉइंट, mark a point B against 120 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्रोट्रैक्टर। तो हमने जितना भी एंगल बनाना होगा वो वहां पे आपने वो मेंशन करना है। पॉइंट इज मार्क अ पॉइंट बी अगेंस्ट। तो अभी इसकी डायरेक्शन राइट साइड है, तो राइट साइड से इनर स्केल यूज करेंगे। तो 120 कहाँ पे आ रहा है, इनर अंदर वाला पार्ट 120 यहाँ आ रहा है, राइट। मार्क अ पॉइंट बी अगेंस्ट 120 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्रोट्रैक्टर। तो अभी पॉइंट ही मार्क करना है, इसके लिए पॉइंट लिखेंगे, अ पॉइंट मार्क अ पॉइंट बी अगेंस्ट 120 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्रोट्रैक्टर राइट। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, अभी नेक्स्ट ज्वाइन पॉइंट ओ एंड बी, इसको हम बी पॉइंट मेंशन करेंगे। ज्वाइन पॉइंट ओ और बी को ज्वाइन करेंगे, राइट। इस पे एरो शो कर सकते हैं हम, दिस इज ए। ज्वाइन पॉइंट्स ओ एंड बी, ओ और बी को ज्वाइन करना। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल, right? Clear? In this way we will draw an angle of any measurement with the help of protractor। तो कोई भी आपको ऐसा सम आ जाए तो आपने ऐसे ही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, बस एंगल चेंज करोगे। अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ और 30 डिग्री यहाँ आएगा, बाकी के पॉइंट्स आप मत चेंज करो। फाइन। सो नेक्स्ट इट्स सेकेंड पार्ट, इसका चॉइस वाला समय, या तो आप एग्जाम में ये करोगे या नेक्स्ट वाला करोगे, राइट। लेकिन हम मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको हर एक सम हर एक पार्ट करना है, राइट। डिफाइन एंड ड्रॉ द लाइन, रे, कर्व एंड वर्टिकल लाइन। सो देयर आर 4 पॉइंट्स, लाइन, रे, कर्व एंड वर्टिकल लाइन। हमने ड्रॉ भी करनी है और इसको डिफाइन भी करना है। सो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट किया जाता है जब, तो एक स्ट्रेट पाथ बनाता है और इसको बोथ डायरेक्शन में एंड कर सकते हैं हम, सॉरी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास एक लाइन जिसको दोनों ही डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, रे क्या होती है, रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का एक एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली एट द अदर एंड। तो दूसरे एंड से हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड इज कर्व इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट डू नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। कर्व क्या होता है, पॉइंट्स का कलेक्शन होता है लेकिन स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता, कर्व की फॉर्म में होता है ये। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन, this line stand straight from top to bottom like this. AB is the vertical line. So second sum is Mr. X bought mango for rupees 61.38, grapes 102.38, gave rupees 500 to the shopkeeper. How much money will the shopkeeper return? क्या स्टेटमेंट है कि मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, उसने इतने के मैंगोज बाय किए, इतने के ग्रेप्स बाय किए और शॉपकीपर को 500 रुपीज दिए। शॉपकीपर को कितनी मनी रिटर्न करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दीज टू कमोडिटीज। तो इन दोनों को ऐड करके 500 में से लेस कर देंगे, राइट। We will write it as Mr. X bought dash 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 return. Cost of mangoes, cost of grapes. So we will add these two numbers. 8 plus 8, 16. 3 plus 3, 6 plus 1, 7. 1 plus 2, 3. 6 plus 0, 6. 0 plus 1, 1. It is 163.76. Right? So टोटल कॉस्ट इज रुपीज 163.76। आप ऐसे भी लिख सकते हो अमाउंट स्पेंट ऑन फ्रूट्स, राइट। नेक्स्ट अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर रुपीज 500। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अमाउंट स्पेंट ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स पे कितनी अमाउंट स्पेंट हुई 163.76। सो वी विल सबट्रैक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक इट लाइक डेसिमल।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 9 minus 6 3, 4 minus 1 3. It is equal to 336.24. So shopkeeper will return rupees 336.24 to Mr. X. So its second part, Mr. Tandon purchased a packet of tea for rupees 32.50 and packet of sugar for 46.30, packet of milk for rupees 28. What is the total amount he paid for the articles? Mr. Tandon ने टी का पैकेट लिया, शुगर का पैकेट लिया, मिल्क का पैकेट लिया और उसने इन सभी आर्टिकल मीन्स इन सभी चीज़ों की कितनी अमाउंट पे की. तो वी विल ऐड अमाउंट ऑफ दीज थिंग्स, राइट. So first of all, we will write it as cost of tea, cost of sugar, cost of milk, then total amount. So we will add these values. 5 plus 3, 8. 2 plus 6, 8 plus 8, 16. 1 will carry over tens place. 4 plus 3, 7 plus 1, 8 plus 2, 10. Right? It's 106.80. So third sum is a book cost rupees 361.30. What is the cost of 15 such books? एक बुक की कॉस्ट गिवन है तो 15 बुक्स की कॉस्ट के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो cost of a book is equal to this. Cost of 15 books is equal to rupees 361.30 multiply by 15. तो इसको आप साइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 0 0, 5 3s are 15, 5 1s are 5 plus 1 6, 5 6 are 30, 5 3s are 15 plus 3 18, right. Then 1 को इससे मल्टीप्लाई 0 3 1 6 3, right. So add these values. 0 5 9 1 14 3 4 5, right. And we will place decimal here. So कितना है आंसर? 5409.50. So cost of 15 books, 15 books की कॉस्ट कितनी होगी? is rupees 5419.50. This is our answer, right. So last sum is the total cost of 18 notebooks is equal to rupees 440.80. What will be the cost of one notebook? तो हमें 18 notebooks की cost पता है. one notebook की cost के लिए we will divide these values. So we will write it as the total cost dash 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 one notebook. Total cost of 18 notebooks 440.80. Cost of one notebook 440.80 divided by 18. So 18 का टेबल रीड करेंगे कि 440 आता है. 18 के लिए फर्स्ट 2 18 2s are 36. सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज 80. तो 18 का टेबल रीड करेंगे कि 80 आता है, नहीं. 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 85, 18 5s are 90, not 85. So 18 4s are 72. Subtract these values 8. Then there is a decimal. We will place decimal here. Bring down 8. तो 8 को bring down करना है. Then read this table again. 18 5s are 90, लेकिन 18 4s ही यहाँ पे आएगा, right. 72. So 8 minus 2 6, 8 minus 7 1 and bring down 0, right. So 18 का टेबल के 160 आ जाए. So 18 8s are 144, right. Subtract these values 6 and 1. So 16 is a remainder here. तो अगर आप इसको आगे भी कंटिन्यू करोगे तब भी 160 बनेगा, तो 24.488 ही आएगा, right. So cost of one notebook is rupees 24.48. This is our answer. Fine. So students, I have solved section 4th and 5th, right.
तो मैंने सेक्शन 4 और 5th को completely सॉल्व किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज सम्स। तो आपको एग्जाम में पैटर्न यही आएगा, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती है, राइट? सो डू प्रैक्टिस of these sums carefully. Fine, and note it down in your notebook number 2. Thank you.